Welcome Manalika Bansal, welcome Aruna Bansal, welcome Madhuri Kadam to the session. Say hi everyone, very good evening Vanita Arora, very good evening Time to Fun, very good evening Navjot Dhillon. So we have couple of students pouring in for the class. We're gonna start very soon with our next session of IELTS Bridge course. Yeah, welcome Prachi to the session. The most important thing for the course is to need to be connected till the end. If you want to capture, grasp each and everything of today's lecture, it is very crucial not just for IELTS students but also for students who are studying in their school levels how to go ahead with reading comprehension. This is the topic of the day. As parallel, we are discussing the IELTS module of reading, and also you will be able to solve difficult to difficult reading comprehension after seeing today's session. So hope. So we have Manalika Bansal with us, we have Aruna Bansal with us, we have Madhuri Kadam with us, we have Vanita Arora, Navjot Dhillon, then Prachi is there with us. All others can introduce themselves in the comment section, those who have joined the session and are here with us. Welcome Harpreet Kaur to the session of Day-3 of IELTS Bridge course. Welcome Vijeta Gautam to the session. So IELTS Bridge course Day 1 only. मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि ब्रिज का मतलब क्या होता है. ब्रिज का मतलब होता है पुल. उस पुल को क्रॉस करके हम इंग्लिश लैंग्वेज का वो पड़ाव पार करेंगे 20 डेज में जो लैंग्वेज की काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को, लैंग्वेज के रिलेटेड आपकी जितनी भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं या आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं, वी विल ट्राई टू क्लियर आउट देम स्टेप बाय स्टेप, डे वाइज डे in these 20 days course. So that is what, with that purpose हमने इस कोर्स को बड़ा एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया है. आने वाले सेशंस में आपको वोकैबुलरी के ऊपर टिप्स फॉर क्लियरिंग एंड स्कोरिंग अ गुड बैंड, सो मैनी लेक्चर्स यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, बट यू हैव टू कंटिन्यू द ट्रेल विद अस. आपको हमारे साथ जुड़े रहना है. दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड so that you can get and draw the benefit of all the things. So we have around 20 students joined with us, but waiting for more. So welcome to this IELTS Bridge course, जिसकी पंच लाइन आप सब के लिए हमने यही रखी है, yes I can, so that at any moment of time अगर आपको ये लगे I cannot, उसको आपको उसी एटीट्यूड में एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ कन्वर्ट करना है. yes I can. शिव खेड़ा एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी यू कैन विन, और उनमें एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिपिक्ट किया है, if you feel that I can, you will, right? If you feel that you can, you will, and if you feel that you cannot, you will never be able to do that thing. कल क्लास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट आज वी होप एंड विद ऑल द blessings of Almighty and with your presence and participation, we are going to make today's class very, very exciting. So are you all ready to experience that excitement? Give me your thumb impressions. Yeah. Are you ready to face that excitement in today's session? How that excitement is going to come? पहले मुझे ये बताओ, excitement कैसे आएगी? आपकी participation से आएगी. You have to enthusiastically participate. You have to just make me feel that you are there, listening to me. Because एक ट्रेनर का जो हौसला है वो दुगना चौगना और 10 गुना भी हो जाता है जब उसके लर्नर्स, उसके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसके ट्रेनिस बड़े इंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. दैट इज़ व्हाट आई इंटेंड टू हैव इट फ्रॉम योर टुडे. सो
IELTS Bridge Course Day 3, we would focus on reading today. रीडिंग है ना, रीडिंग जैसे ही रीडिंग की बात होती है, बचपन से लेकर आज तक जो भी हमने स्कूलिंग में पढ़ा है, जो भी हमने कॉलेज की स्टडीज़ में पढ़ा है, सब कुछ रीड किया है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो सब्जेक्ट ऑफ एसएसटी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है. मैथ्स के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट ऑल अदर सब्जेक्ट्स आर थेरेटिकल. हमने रीड किया है, बहुत सारी चीज़ें रीड की हैं. बट वाई इज़ दैट? हम रीड करते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी आंसर सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी टुडे कि रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या डिफरेंस है. जो भी टेक्स्ट आप रीड करते हो, यू नो, वेदर इट इज़ एकेडमिक टेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसके अंदर टेक्स्ट होता है, आप उसको रीड करते हो, देन बेस्ड ऑन दैट रीडिंग यू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस, राइट. तो यही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पर्पज़ है. आज के इस सेशन में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम रीडिंग के सेक्शंस की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. एकेडमिक में और जर्नल ट्रेनिंग में दोनों ही डिफरेंट होती हैं, बोथ आर डिफरेंट. कंटेंट, व्हाट इज द कंटेंट, पैसेजेस जो आते हैं, पैसेजेस ऑफ कोर्स डू यू हैव पैसेजेस इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एंड उनके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होता है. तो किस तरह के टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको कंटेंट बेस्ड होता है, पैसेजेस आपको जिसमें रीडिंग एग्जाम में आपको मिलते हैं. देन ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, ये जो आपका रीडिंग क्लास का फर्स्ट सेशन है, पार्ट 1, बिकॉज इट इज़ एन एक्सटेंसिव सेशन एंड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आइल्स के एग्जाम में. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग टेस्ट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग वन. द रीज़न इज़ ओनली वन, बिकॉज मैनी आइल्स टेस्ट टेकर्स आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते. सो 60 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है और 60 मिनट्स को आप उस तरह से बेस्ट टाइम को किक करके आगे तक नहीं ले जा पाते. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पेपर रिमेन्स अनअटेम्प्टेड बाय मेनी ऑफ द टेस्ट टेकर्स. दिस हैज़ बीन अ कॉमन एनालिसिस एंड कॉमन सर्वे. इसीलिए लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रीडिंग को माना गया है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ. और उस टाइम मैनेजमेंट को कवर आउट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो फॉलो करके हम रीडिंग टेस्ट को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं एंड वी कैन स्कोर अ गुड बैंड. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोना डिस्कस टुडेज सेशन. सो ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रीडिंग टेस्ट इन IELTS इज डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड GT. जिन्होंने आज सेशन फर्स्ट डे लगा रहे हैं उनके लिए डे 1 और डे 2 देखना बहुत ज़रूरी है. If they want to just clear out the difference between academic and GT IELTS, you should know, I already told in the previous session, academic is you are going first as student to an English speaking country, and GT, that is journal training, is for job or PR or immigration otherwise. So reading का जो टेस्ट होता है academic का और GT का different होता है. किस तरह से वो different होता है, we are going to discuss in further slides. So let us proceed. The most important thing before we proceed with this reading test layout, हमें क्या चीज़ समझनी है, what is the difference between reading and reading comprehension. बहुत बार स्कूल टाइम में टीचर खड़ा कर देती थी, ओके यू स्टैंड अप सुमित, रीड आउट द टेक्स्ट नाउ. उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट स्टैंड अप, रीड आउट द टेक्स्ट नाउ. एंड व्हाट यू यूज टू डू इन ड्यूरिंग दैट टाइम, वर्ड्स आपके सामने होते थे एंड यू यूज टू रीड लाउडली आउट टू द क्लास. And then further the teacher would explain that reading thing to you. तो वो reading, जब हम एक text आपके सामने है and you are translating that text into speech, आप उसको sound में translate कर रहे हैं without understanding its meaning. उसमें आपका पर्पस मीनिंग को अंडरस्टैंड करना नहीं होता, आप रीड कर रहे हैं और साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जस्ट लुकिंग एट द वर्ड्स. दैट इज कॉल्ड रीडिंग. But reading comprehension is totally different from reading. Reading comprehension, what does happen in reading comprehension? That आपको passage को पूरा grasp करना है. You have to take the whole soul of the passage. You have to understand the soul of the passage. Soul means SOUL. उसकी spirit को समझना है, उसकी theme को समझना है, उसके अंदर जो vocabulary pattern use हुए हैं उसको समझना है. We have to understand the word meanings. We have to understand the grammar used in that. Many things come into play when we just talk about reading comprehension. Understanding the passage, and of course based on that understanding we have to answer certain questions.
व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही अंडरस्टैंडिंग है. टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड. So this word comprehension means understanding only. So reading with understanding and then answering some questions based on that is reading comprehension, and that is what we get in an IELTS test. Reading comprehension passages. We don't get reading material, we getting reading material along with the questions, and they expect us to answer those questions. Now tip number 1 for this test is, as I already discussed in listening test video, day 2, we already know there are instructions. जब भी आप एग्जाम देते हो, instructions are there to follow. क्वेश्चन पेपर के ऊपर instructions हैं, आंसर शीट है उसके ऊपर instructions है. instructions को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम mess is created because you don't read instructions very properly. आप ऊपर की जो instructions को पढ़ते ही नहीं हो कि what is expected from out of me. आखिर वो एग्जामिनर या वो टेस्ट टेकर मेरे से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है. अगर वो आपको बोल रहा है कि इसका वर्ड, एक वर्ड में आंसर लिखिए, और आपने बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े उसका आंसर 2 वर्ड में दे दिया, ऑफ कोर्स आपने केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा एंड यू हैव ब्रोकन द इंस्ट्रक्शंस, दे वुड नॉट गिव यू मार्क्स. देयर आर मेनी अदर इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो. सेंटेंस कंप्लीशन करना है, उस टास्क के अंदर जो टास्क के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उसको किस तरह से आपने आगे कैरी आउट करना है, किस तरह से उसका आंसर देना है, उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द टास्क्स यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट. सो दैट इज व्हाट वी मीन टू गो बाय रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. नेक्स्ट टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किम एंड स्कैन. अब ये दोनों ही वर्ड आपके लिए नए हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन whether you understand the meaning of skim and scan. What is the meaning of skim and what is the meaning of scan? Let me see how many are able to answer me. What do you mean by skim, that is skimming in a reading passage, and what do you mean by scanning in a reading passage? ये reading comprehension के अंदर दोनों techniques हैं जो हम use करते हैं very often to understand a passage, to understand and answer the questions of the passages. So what do we mean by skimming and what do we mean by scanning? Let me see how many answers I get in the comment section. Skim and scan, what is the difference? Yeah, who would tell me? I'm quickly waiting for your answers. Let me see who answers, who types this answer fast and first. Fastest fingers first. KBC में आता है ना? So let me see who is able to answer this question of mine. Angel Garg has said to analyze properly. Skim, remove. No, it's not the remove. Meaning of skimming is not remove. Okay, so let me just tell you, skimming is दोनों ही चीज़ें रैपिड रीडिंग को पढ़ते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम उस पैसेजेस के लिए, टोटल जितने भी आपके पास पैसेजेस है, 3 है 5 है, उनके लिए आपको टोटल जो स्प्रेड आउट टाइम दिया जाता है दैट इज 60 मिनट. और 60 मिनट्स में आपको पैसेजेस को भी रीड करना है और आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को भी आंसर करना है. एंड देन पैरेलली यू हैव टू फिल योर आंसर शीट ऑल्सो. क्वेश्चन बुकलेट में आपने क्विकली आंसर्स को डालना है. देन यू हैव टू fill them in the answer booklet also. It's not necessary कि क्वेश्चन बुकलेट में लिखो, बट एट टाइम्स इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको अगर कहीं ना कहीं कुछ गलत है तो आप उसको डेफिनेटली आंसर शीट में भरने से पहले करेक्ट कर सकते हो. तो स्किम इज ऑल्सो रैपिड रीडिंग, स्कैन इज ऑल्सो रैपिड रीडिंग, पर दोनों का पर्पज अलग होता है. स्किमिंग अ पैसेज, एक पैसेज की स्किमिंग का मतलब क्या है, दैट यू वॉन्ट टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द पैसेज. आप उसकी थीम को बताना चाहते हो और आप पैसेज के ओवरऑल क्रक्स को डिस्कस करना चाहते हो, तो आपने पूरा फटाफट रैपिड रीडिंग किया, आपको पूरे पैसेज का ओवरव्यू मिल जाता है कि इस पैसेज में किसके बारे में बात की जा रही है. सो दैट इज कॉल्ड स्किमिंग. What do we mean by scanning? Scanning is when you look for a specific information. आप रैपिड रीडिंग ही कर रहे हैं, you are not reading slowly and you are not supposed to read slow while attempting a reading test in IELTS. This is a very important tip. Slow reading means will kill your reading test. आप वो कर ही नहीं सकते. It is a poison for your reading test. तो स्लो रीडिंग तो कर ही नहीं सकते. स्किम एंड स्कैन की 2 थ्योरीज हैं. अगर आपको पैसेज का ओवरव्यू चाहिए तो स्किम कीजिए. ओवरऑल मीन्स पैसेज के अंदर आफ्टर ऑल किसके बारे में बताया जा रहा है. अगर आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लोकेट करना है, किसी पर्टिकुलर डेट को, किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, स्कैनिंग इज लोकेटिंग एंड फाइंडिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट.
आप एक इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो, एक फैक्ट को ढूंढ रहे हो, और आप रैपिड रीडिंग से उस इन्फॉर्मेशन को उस पैसेज के अंदर लोकेट करते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कैन. स्कैन मीन्स स्कैनिंग एंड देन आइडेंटिफाइंग दैट की इन्फॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगी. सो दिस इज़ व्हाट, दोनों ही स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. स्किमिंग कहाँ काम आती है और स्कैनिंग कहाँ काम आती है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू गेट. अगर आपको थीम की पूरी समरी लिखनी है तो आपको स्किमिंग हेल्प करेगा. पूरे पैसेज की समरी आपने कंप्लीट करनी है तो यू विल हैव टू रीड द होल पैसेज एंड देन स्किमिंग विल हेल्प यू. इफ यू हैव टू आंसर अ पर्टिकुलर फैक्ट इन वन लाइन or MCQ based answer, then scanning will help you out because you are looking for a particular information in the passage. So this is how both these steps in reading comprehension are equally important. Tip 3, make your reading skills effective. Now क्या मतलब है इसका? reading skills, reading पढ़ना, स्किल्स मतलब उसके अंदर इफेक्टिवनेस लाना, उसके स्किल्स को डेवलप करना. क्या रीडिंग के अंदर ऐसे स्किल्स हैं जो हम उसको इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो रीडिंग के लिए जो चाहिए दैट इज़ पेशेंस. बिकॉज बचपन से लेकर आज तक हम रीडिंग करते आ रहे हैं, लेकिन स्किल्स क्या होते हैं? आप कामली पेशेंस एक पैसेज को रीड कर रहे हो. स्टार्टिंग इनिशियल प्रैक्टिस डेज में आप सिर्फ पैसेजेस को रीड करो. रीडिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए, कुछ भी रीड करो. यू कैन स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर विच कम्स एट योर होम. हैव यू गॉट अ पेशेंस टू रीड? दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट स्किल. सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यही है कि आपके पास कुछ कंटेंट को अब 15-20 अगर लाइन का कोई आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है या कोई मैसेजेस फ्लोट होते रहते हैं व्हाट्सएप पे. आई ऑल्सो कीप ऑन सेंडिंग लॉट ऑफ मैसेजेस इन व्हाट्सएप ग्रुप्स. तो क्या आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आप किसी कंटेंट को जो एक्चुअली वर्थ वाइल रीडिंग है उसको रीड कर पाओ? वो स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो पेशेंस ही है कि आप पेशेंस से एटलीस्ट 10-15 लाइन्स या 25-30 लाइन्स का कुछ चीज़ पढ़ पाओ. क्योंकि लोगों पे पेशेंस ही नहीं होती. 2-3 लाइन्स पढ़ते हैं देन दे लीव देयर. हाउ विल यू गेन दैट? सेकेंड स्किल जो रीडिंग स्किल के अंदर होता है स्पीड. अब वो स्पीड कैसे बनेगी? वो स्पीड एक दिन में नहीं बन सकती, एक हफ्ते में नहीं बन सकती. इट विल कम व्हेन यू विल प्रैक्टिस दैट. आप रीडिंग जैसे जैसे करते जाएंगे आपकी स्पीड जो है रीडिंग की बढ़ती जाएगी. नए नए वर्ड्स आप सीखते जाओगे एंड यू विल मेक योर रीडिंग स्किल्स इफेक्टिव. देन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर. ओवरऑल आपके जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बहुत इफेक्टिव होने चाहिए, वेदर इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, वेदर इन टर्म्स ऑफ ग्रामर. अगर आप बार बार प्रॉब्लम्स फेस करोगे एक रीडिंग पैसेज को पढ़ के, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पता है क्या होती है? कि रीडिंग स्किल्स है, रीड कर रहे हो, आपको रीड करते करते एक वर्ड आता है उसका मतलब नहीं पता. आप क्या करते हो? डिक्शनरी उठाते हो, डिक्शनरीज के अंदर से उस वर्ड को ढूंढने लग जाते हो, विच किल्स अ लॉट ऑफ टाइम. लेट मी टेल यू दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन भी करेंगे, रीडिंग पैसेजेस की प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट गो डायरेक्टली फॉर लुकिंग आउट फॉर दैट वर्ड इन द डिक्शनरी. आपको पैसेज को एक पर्टिकुलर स्पैन के टाइम के साथ प्लान करके चलना है कि ये मेरा रीडिंग पैसेज है, इसको मैंने 20 मिनट्स के अंदर अटैम्प्ट करना है. रॉन्ग और राइट यू जज लेटर ऑन, राइट? उसके बाद आपने किया, उसको पूरे आंसर्स आपने लिखे. देन you might come across certain difficult words. Look for those words in the dictionary or in the Google later on. Don't just go on in between the passage, otherwise you will never be able to plan a passage कि मैं कितने टाइम में उसको ख़त्म कर पा रहा हूँ. तो ये सारी चीज़ें रीडिंग स्किल्स को इफ़ेक्टिव बनाने में काउंट होती हैं एंड वी हैव टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. टिप नंबर, ये टिप नहीं है, आई जस्ट टेल यू कि रीडिंग किस तरह से चैलेंजिंग है. अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल बनाए हैं सेपरेट. यू आर एबल टू सी इन वन टेबल वी हैव टू सी की वर्ड्स इन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन में कुछ की वर्ड्स हैं, कुछ भी की वर्ड्स हो सकते हैं. की वर्ड्स होते हैं मेन वर्ड्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटेन होती है. एंड उसके बाद पैसेजेस में कुछ वर्ड हैं. अब उसको कैसे, समटाइम्स आपको क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स मिलेंगे ना वो पैसेज के अंदर होंगे लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में होंगे, वो वहीं पढ़े होंगे लेकिन वो अलग, उसके लिए अलग तरह का स्टाइल यूज़ किया गया है उसको डिपिक्ट करने के लिए. अब क्वेश्चन के अंदर आपको कीवर्ड आ गया अबाउट 1900, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है अबाउट 1900 सेंचुरी या 1900 ईयर है. सो 1900 आपको आ गया और आपने उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, लेकिन पैसेज के अंदर आपको 1900 कहीं मिल ही नहीं रहा.
सो आपको ये पता है कि 1900 एक ईयर है. 1900 ईयर, ऑफ कोर्स इट इज़ इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स की बात करें तो 1900 ही से स्टार्ट होती है सेंचुरी. 21st सेंचुरी कब से स्टार्ट हुई है? 21st सेंचुरी हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2001 and 20th century was started from 1901. अब about 1900 means early years of 20th century. तो ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं लैंग्वेज के जो हमें समझने पड़ते हैं विद आवर नॉलेज. सेंचुरी, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 years. One century has 100 years. This much knowledge we all should have. We should have different word power. Word power जब तक नहीं है we won't be able to understand the passages. अब दूसरा कीवर्ड क्वेश्चन में आपको मिलता है इनएडिक्वेट डाइट. अब इनएडिक्वेट का मतलब है नॉट सफिशिएंट. अगर कोई बच्चा अच्छे से डाइट नहीं लेता, अपने डाइट के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल दैट नेसेसरी थिंग्स नहीं लेता, तो हम उस डाइट को बोलते हैं द चाइल्ड इज़ हैविंग इनएडिक्वेट, जो कि उसकी हेल्थ के लिए सफिशिएंट नहीं है, मीन्स इनफ नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड इनएडिक्वेट डाइट. अब ये आपका क्वेश्चन में आ गया और पैसेजेस के अंदर आपको वो इनएडिक्वेट डाइट मिल ही नहीं रहा है. यू हैव दिस डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? साइंस में आपने पढ़ा है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जब उनकी कमी होगी तो यू विल हैव बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट डाइट, आप न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कीवर्ड एंड द पैसेजेस कीवर्ड्स वेरी का मतलब वो चेंज होते हैं एंड आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है. अब इसको देख के घबरा मत जाना कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा. कुछ डिफिकल्ट नहीं होता. लेट मी सी, ओनली योर माइंड सेट मेक्स इट डिफिकल्ट. हर चीज़ को मुश्किल सिर्फ आपका अप्रोच और आपका माइंड सेट बनाता है. अगर माइंड सेट ये बोलता है ना कि येस आई कैन, विद द सेम माइंड सेट आई हैव framed each and every session. Don't worry, we are there to help you. I am just a phone call away. You can always message me and ask your doubt. If you are just practicing or reading passage, you come across a difficult word, ask me. I am assure you I will answer you. That is my promise. A waste of funds. A waste of funds means, of course, हमें पता है funds क्या होते हैं, जिसमें हम पैसा लगाते हैं जब हम किसी चीज़ में, और उसकी जब वेस्टेज होती है तो हम कहते हैं कि पैसा वेस्ट हो रहा है. सिंपल मीनिंग. ये आपको क्वेश्चन में कीवर्ड आ गया. और सिमिलर वर्ड जो पैसेज में कहीं नहीं मिल रहा वेस्ट ऑफ फंड्स, तो उसको हम इस तरह से पुटअप कर सकते हैं, पुअर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. अब ये वर्ड पैसेज में है और वेस्ट ऑफ फंड्स आपको क्वेश्चन में आ गया. पुअर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी वही होता है, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी. आप उनका इस्तेमाल जो है पुअर कर रहे हो, दैट मीन्स आप उनको वेस्ट कर रहे हो. एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज़ हाउ हमें सिमिलर, सिनोनिम, पैराफ्रेजिंग को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है एंड देन वी हैव टू create our answer. Look at another keyword. In the question you have recreation and the synonym word in the passage is leisure. Both have the same meaning. Recreation also means entertainment and leisure is also means your free time when you want to entertain yourself. So what is your recreation? This thing, अगर मैं आपको बोलूँ what do you want to recreate yourself? What is your recreation pastime? You can say it is my hobby. That is generally used to do that. So this is how the words can change in the question as well as in the passage. Parallel. Nearly everyone. ये word आपको question में मिला. Nearly everyone. Nearly everyone means almost everyone. सब लोग उसमें हैं. तो similar words in the passage you will find most people. So एक ही बात है, दोनों का मतलब same है. तो आपको उस word को ढूंढना है जो उसको immediately उसको match करता है उससे. Then you have keywords in the question. Monday, Tuesday and Wednesday. These words are there. और लेकिन यहाँ similar words passage में क्या मिलेगा? 3 consecutive days. 3 consecutive days का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक. तो Monday, Tuesday, Wednesday एक के बाद एक आते हैं. And then for 3 consecutive days, is the same word you find in the passage. It is just to identify your answer. अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए ये बहुत से ऐसे पैराफ्रेज और सिनोनिम्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे ताकि आप अपने पैसेज को ईजिली समझ के क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ. सो आई होप दिस चैलेंज विच यू फेस इन द एग्जाम इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मैनी ऑफ सच पैराफ्रेज थिंग्स. ये सिर्फ एक नहीं है. जब आप प्रैक्टिस करोगे पैसेजेस को, दीज एक्चुअल प्रॉब्लम्स यू वुड फेस, क्योंकि वर्डिंग पैसेज में अलग होती है, क्वेश्चंस में अलग होती है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड को रिलेट विद द पैसेज.
ओके, चलिए अभी अगले आते हैं टिप 4 पे। डेवलप एंड लर्न वोकैबुलरी इन द कॉन्टेक्स्ट। वोकैबुलरी 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 एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। वोकैबुलरी इम्प्रूव एक दिन की बात नहीं होती। बहुत सारी वोकैबुलरी हमारे आसपास हैं। अभी आप एक रूम में बैठे हुए हो, एक सेटअप के अंदर बैठे हुए हो, बहुत सारे वर्ड्स आपके आसपास हैं, बट द प्रॉब्लम विद वोकैबुलरी डेवलपमेंट इज़ आर क्यूरोसिटी। बहुत कम लोग क्यूरियस होते हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन योर लाइफ। कोई बंदा इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखना चाहता है, अगर वोकैबुलरी नहीं है, आपको आसपास की चीज़ों की इंग्लिश ही नहीं पता, then how are you going to learn speaking? Tell me. A housewife wants to learn speaking and she doesn't know a single word in English. She is standing in the kitchen, she doesn't know a single word in English about kitchen. तो English vocabulary improve is from start from your surroundings. अपनी surrounding से start करो. Pick any theme for a particular day. एक दिन के लिए एक theme ले लो. Okay, आज मैं kitchen में खड़ा हूँ, आज मैं ऑफिस में बैठा हूँ. Let me just look around me and find what do I call this particular word. Start from your day to day themes. अपने आसपास की वोकैबुलरी को ऑब्जर्व कीजिए. बी क्यूरियस. बहुत सारी क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए. क्यूरियोसिटी है तो यू आर एबल टू विन एनी चैलेंज इन लाइफ. सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डेवलप वोकैबुलरी इन द कॉन्टेक्स्ट. अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इन द कॉन्टेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है. ये सिर्फ वर्ड डालने के लिए नहीं डाला है, इट हैज़ अ मीनिंग. डेवलप एंड लर्न वोकैबुलरी हो गया. इन द कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द कॉन्टेक्स्ट. देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी को मैं बहुत से सिनोनिम से यूज़ कर सकती हूँ. शी इज़ वेरी ग्लैड टू मीट यू, शी इज़ वेरी डिलाइटेड टू मीट यू, ऑल दैट. आई कैन यूज़ वेरियस वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हैप्पी. डिलाइटेड, ग्लैड, cheered, pleased, I can use very words. लेकिन if I use like एक particular phrase होती है happy go lucky, like let me just, this happy go lucky is a phrase, let me just write it for you. Happy go lucky. This is a idiom. यू कैन से हैप्पी गो लकी पर्सन वो होता है जो जहाँ भी जाता है वहीं पे खुशी फैला देता है. इट्स एन इडियम फॉर यूज्ड फॉर अ पर्सन हैप्पी गो लकी. वेर एवर ही गोज ही स्प्रेड्स हैप्पीनेस. एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे भी हैप्पी वर्ड आया है, बट आई कैन नॉट रिप्लेस इट विथ प्लीज्ड गो लकी और डिलाइटेड गो लकी, बिकॉज वो ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है. वो उस कॉन्टेक्स्ट में हैप्पी गो लकी है तो उसको मैं हैप्पी गो लकी बोलूँगी, उसको मैं चीयर्ड गो लकी नहीं बोल सकती. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न इन द कॉन्टेक्स्ट. बहुत बार चीज़ें इसे आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, मैं आपको मिलकर बहुत खुश हूँ. यहाँ पे मैंने डिलाइटेड वर्ड का इस्तेमाल किया जिसका मतलब हैप्पी है, राइट. अगर मैं बोलती हूँ दैट शी इज़ डिलाइटेड ऑन अ बर्थडे, सो probably in that context it will not be applicable, because delighted happens when you share something with someone. You cannot be on your own. आप अपने खुद में नहीं हो सकते हो. कुछ भी खुद में होते हो तो cheerful फील कर सकते हो, elated फील कर सकते हो, ecstatic फील कर सकते हो. All these words again you have to see कि किस context में कौन से words. कई बार जिस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, अगर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है तो वो उस वोकैबुलरी वर्ड का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया जाता. या अभी एक छोटा सा चीज़ आपकी पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. एक छोटा सा वर्ड है, आपको कुछ बताऊंगी एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू enthusiastically participate. First give me your thumb impression that you are ready to participate. Yeah, you are ready to participate. Give me your thumb impressions. Yeah, we can even use pleased to meet you. Yeah, wonderful. And Rapunzel's fairy word exhilarating, she has written a wonderful word here. Yeah, give me the synonyms for sad. Let me see how many of you write synonyms for sad. छोटा सा एक vocabulary quiz करते हैं, not as a quiz, as a participation. Yeah, sad, synonyms for sad I want. Let me see how many of you answer it. Different words ही यहाँ comment section में ही आएंगे, and with lot of participation we can learn different words for sad. I will also write some words. I will speak out. You can write in the comment section. The first word I will give you,
The first word for sad is downcast. DOWNCAST. So I can say it is downcast. Sad, unhappy, wonderful. Upset, very good. Depressed, dismayed. Dismay is like you have to add ed to make it an adjective. Dismayed, yeah. Dismayed, unhappy, depressed, upset. Yeah, very wonderful. Depressed. Downcast is the word which I have given you. Sorrowful, wonderful. Sorrowful, no double L with sorrowful. Yeah, it's single L. Sadness is not an adjective. I asked for sad only. So you have to just give me adjectives only. Downcast is one word. You can't write it. Deceitful is a person who cheats actually. It is not sad. Deceitful has some other meaning. Deceitful. Misery again is a noun. So you have to understand we are talking about adjectives only. Sad is an adjective. Give me adjectives only. Don't give me nouns. Many of you are giving me nouns. Regretful. Regretful is not sad. Regretful is when you are guilty of something. That is called regretful. Doleful is good. Downhearted is good. Wonderful. So this is a kind of practice we have just done for your interest. Learn vocabulary this way. Just take a challenge. Vocabulary challenge. एक family member को daily pick करो. Okay पापा, I will have a vocabulary challenge with you today. Let me see how many आप अंताक्षरी खेलते थे ना बचपन में. Let's have a vocabulary अंताक्षरी. I must tell you my personal example. In our family also, we have a game with our children. We are 4 of us, me, my husband and my children, 4 of us. Every day we have a new word. हम अपना एक नया word daily सोचते हैं और रात को सोने से पहले before going to bed we all reveal our word. तो हमारा आज का word ये है. Then we will discuss with each other. हम चारों अपना अपना word reveal करते हैं and then they will tell each other their meanings. तो एक चारों बंदे 5 मिनट के लिए बैठ के हम daily 4 नए word सीखते हैं. So you can start this kind of a challenge with one of your friends. आप सबके पास मोबाइल हमेशा रहता है. You all are tech savvy people. तो मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे डेली 10 वर्ड्स लगा लीजिए. बिकॉज पुराने ज़माने में बोला जाता था स्कूल्स और कॉलेजेस में कि पॉकेट डायरी रखो, डायरी के अंदर वर्ड्स लिखो. तो आजकल सबकी पॉकेट डायरी उनका मोबाइल बन गया है. इन दिस इलेक्ट्रॉनिक वर्ड, राइट, ऑनलाइन वर्ड, सब ऑनलाइन ट्रेंड्स हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप अ स्क्रीनशॉट एज अ वॉलपेपर ऑन योर होम स्क्रीन. अपने मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर एक 10 वर्ड्स का डेली, नए 10 वर्ड्स का एक वॉलपेपर लगा लीजिए. एवरी टाइम यू ओपन योर मोबाइल, दोज 10 वर्ड्स विद मीनिंग्स विल बी देयर राइट बिफोर योर आइज. आप वहाँ से सीख सकते हैं. आई जस्ट अप्रिशिएट वन पर्सन. आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम. आई वुड रियली अप्रिशिएट. मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ वोकेबलरी के इमेजेस शेयर की थी वेर इन different words were shared. One of the persons, I would still not remember the name, I'm very sorry for that. One of the person put up as his status. See how many people will be able to learn with that kind of a practice. So you can have such beautiful and wonderful creative practices in your life to develop and learn vocabulary and in the context also. क्योंकि जब आप उस word को use करते हो तो आपकी life में वो जो word है वो active हो जाता है. कोई भी नया वर्ड, आज आपने एक नया वर्ड सीखा डाउनकास्ट मान लीजिए. उस डाउनकास्ट को कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे आपने राइटिंग में अप्लाई करा, चाहे आपने उसको अपनी स्पीकिंग में अप्लाई करा, दिस विल रिमेन एक्टिव इन योर लाइफ फॉर लॉन्ग. किसी भी चीज़ को लाइफ में एक्टिव बनाने के लिए, अपनी मेमोरी के अंदर उसको एक्टिव करने के लिए, ब्रेन सेल्स ऑल्सो फंक्शन. जिस तरह से अपनी लाइफ में आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, जैसे आपने उसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया, दैट विल बिकम एन एक्टिव पार्ट एंड इट विल ऑटो सेव इन योर मेमोरी. आपका जो मेमोरी इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, आपका ब्रेन इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, उसको ऑटो सेव कर देगा आपकी मेमोरी में, वो परमानेंट हो जाएगा. पर अगर आप उस वर्ड को, आज ये डाउनकास्ट वर्ड है, कोई भी ऐसा वर्ड पिक कर लीजिए, अगर उस वर्ड को आपने 1 या 2 दिन आज सीख लिया, लेकिन अगले आने वाले 2 या 3 दिन में आपने उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया अपनी कम्युनिकेशन में, चाहे वो राइटिंग है चाहे वो स्पीकिंग है, वो वर्ड आपकी मेमोरी से ऑटो डिलीट हो जाएगा. दिस इज़ अ ब्रेन प्रोसेस. नेचुरली आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ योर ब्रेन फंक्शनिंग. तो अगर आपने वोकैबुलरी को अपनी पार्ट में, अपने ब्रेन में एक्टिव करना है, पैसिव नहीं करना है, तो उसको सीखने के साथ साथ उसको यूज़ भी कीजिए. स्पीकिंग में भी यूज़ कीजिए, राइटिंग में भी यूज़ कीजिए. ग्रेजुअली इतने ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे ना, दैट डब्बा भर के जब आपको वर्ड्स आ जाएंगे ना,
आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, देन यू विल टेंड टू लर्न मोर एंड मोर। जब जितनी कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, जितनी चीज़ डब्बे में आती है और चाहिए, तो जब एक बार आने लग जाएंगे ना, यू विल हैव अ लॉट ऑफ देम, हैंडफुल ऑफ देम, तब आपको और भी उसके लिए हंगर बढ़ेगी। एंड दिस वोकैबुलरी हंगर इज गोइंग टू रियली हेल्प यू in your future life as far as English language is concerned. Of course, as our IELTS exam is concerned. So let us proceed with the next tip. Tip number 5. When we talk about scanning, है ना, look for specific information. The most important thing, सबसे पहले जो आपके टास्क होते हैं ना, you have various tasks in your IELTS exam. सबसे पहले उन टास्क को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टास्क को पढ़े बिना अगर आप पैसेज रीड करते हो, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ते हो, it's going to be a sheer wastage of time. So to manage it, you have to read a question. Let's say first question, read first question. Then of course ये जो सीक्वेंस में रहता है, आपका जो क्वेश्चंस का पैटर्न कई बार सीक्वेंस में रहता है, कई बार सीक्वेंस में नहीं रहता। तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ढूंढिए, आपको आंसर मिला, उसको क्वेश्चन बुकलेट में लिखिए, उसके बाद उसको साथ के साथ आप आंसर बुकलेट में ट्रांसफ़र कीजिए। सो दिस इज़ हाउ लुक फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन के रिलेटेड एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ भी आ रहे हैं, इज़म आ रहे हैं, आप उनको ड्रॉप कर जाओ। दिस दैट आ रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दो। लुक फॉर की वर्ड्स। की वर्ड्स क्या हैं? की वर्ड्स आर द वर्ड्स। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को टाइटल देते हैं ना, अब ये आपके सामने एक लाइन है, लुक फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर इसके मैं की वर्ड्स की बात करूँ, सो आई वुड जस्ट से 2 की वर्ड्स आर देयर इन दिस, स्पेसिफिक एंड इन्फॉर्मेशन। और लुक भी कह सकते हैं। जो प्रेपोजिशंस हैं, जो कंजंक्शंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, राइट। जब तक हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस और एल्से इज़म आर, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑल दीज आर नॉट की वर्ड्स। कोई भी टाइटल के अंदर भी देखेंगे ना, तो की वर्ड्स हमेशा फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटलाइज किया जाता है। पैसेज के अंदर ऐसा नहीं होता। आई एम जस्ट टेलिंग यू की वर्ड्स क्या होते हैं, मेन वर्ड्स जो उस पैसेज को मीनिंग देने में हेल्प कर रहे हैं। सो वो होते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करने वाले वर्ड्स, उनको ढूंढना है। बाकी सब वर्ड्स को फटाफट स्किम करना है, आपने स्कैन करना है स्पेसिफिक वर्ड्स को, जो आपके आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स में आपको हेल्प करें। Tip number 6, search for keywords. Again, it's related to the previous one only. You have to search for those keywords which will be an answer to your question. Wonderful, Navneet Sethi. Thank you for the appreciation. Can you explain the meaning of the word skimming? Yeah, skimming I told you beta. It's a rapid reading. Rapid reading है skimming, जिसके अंदर आप overview लेते हो पैसेज का। मान लीजिए आपने पैसेज की थीम लिखनी है, आपको पैसेज के बारे में उसकी समरी लिखनी है, उसकी समरी आपको आ भी गई, उसको कंप्लीट करना है, तो आपको पूरे पैसेज का ओवरव्यू चाहिए कि उस पैसेज के अंदर आफ्टर क्या बात की गई है। तो रैपिड रीडिंग टू फाइंड ओवरव्यू ऑफ द पैसेज, कि उस पैसेज में आफ्टर क्या बताया गया है, राइट। दिस इज स्किमिंग। स्कैनिंग में आप कीवर्ड्स या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो। मान लीजिए आपने किसी का बर्थ डेट ढूंढना है, किसी पर्टिकुलर साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में उसको ढूंढना है। So all those are specific information and keywords. Tip number 7, use accurate syntax and grammar. अब grammar तो सबको पता है, everybody knows, we have been learning it since our childhood and आज तक भी हम लोग struggle कर रहे हैं grammar के बारे में, right? Grammar is the most important thing, क्योंकि आंसर्स आपको शॉर्ट में भी लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फिलअप्स लिखने हैं, आपको शॉर्ट आंसर्स भी लिखने हैं। उसके लिए आपको करेक्ट ग्रामर यूज़ करनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस है, यहाँ पे उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बेसिक ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू स्ट्रेंथन योर ग्रामर। You must visit our video library, our channel video library, and अपना एक टारगेट सेट करो 15 डेज का। इन्हीं 20 डेज में डेली you have to watch 1 lecture. I will keep sharing 1 lecture every day in the group and you watch that. Remember, trust me, your grammar will definitely be strong after watching all those 15 to 20 videos. Just 15 to 20 videos, 10 minutes each video. What difference will it make if you have a perfect grammarian at the end of the story? So that is what we have to put efforts for that. ऐसे नहीं आ जाएगी ग्रामर बैठे बैठे। बहुत बार कहते हैं कि मेरी ग्रामर तो बहुत अच्छी है, बट व्हेन इट कम्स टू टैक्टिक्स, व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, जब उसको लिखने की बात आती है, जब उसको बोलने की बात आती है, तो बहुत स्टूपिड एरर्स हो जाते हैं। आई मस्ट नॉट कॉल देम स्टूपिड, बट येस, दोज आर सिली एरर्स
जब बच्चों को हम बोलते हैं ना कि सिली मिस्टेक्स, दो सिली मिस्टेक्स कम इन टू प्ले व्हेन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेट सिंटेक्स। सिंटेक्स वही होती है करेक्ट स्ट्रक्चर, सीधी स्ट्रक्चर में बोलिए, कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है। नॉर्मल में तो सबको पता है शी के साथ इज लगाना है, दे के साथ आर लगाना है, बट देर आर रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है। मैंने वीडियोस शेयर भी किए थे आइल्स के जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में। इफ यू हैव नॉट वॉच यू मस्ट वॉच। देन देर आर कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल मेक। There are 3-4 sessions on common mistakes also. I'll be sharing those videos today. Do watch them and just try to overcome those mistakes in your writing as well as your speaking. So accuracy of grammar is very important. Accuracy of structure is very important. Right? Tip number 8 is missed out somewhere. Tip number 9, plan, prepare and practice. So first you need to plan. You need to plan that this is what मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास 1.5 महीने का टाइम है and I have filled my IELTS exam today. You have to plan the whole structure. एक शेड्यूल तो बनाते हो, एग्ज़ाम है, डेट शीट आ गई किसी भी क्लास की, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, डेट शीट आ गई, प्लान करते हो सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करना है। पहले मुझे थ्योरी समझनी है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुझे अपनी वीकनेसेस को दूर करना है। यू हैव अ प्लान फॉर योर सेल्फ। आपका खुद का प्लान है, आपका खुद का लाइफ है, खुद का आइल्स एग्जाम है। हु एल्स कैन हेल्प यू बेटर देन योर सेल्फ? कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ देम आर कमर्शियलाइज्ड। they have that kind of an approach that they want to drag the people head and head. बट अगर आपके अंदर एक स्ट्रैटेजी है, बेस आपका कई बार वीक होता है एंड दे ऑल्सो आर नॉट एबल टू इन अ पोजिशन टू हेल्प यू आउट। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ चलते हो, खुद के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब टीचर आपको गाइड कर सकता है, एक मेंटोर है, एक आइल्स ट्रेनर है, ही और शी कैन गिव यू गाइडलाइंस बट ही कैन नॉट स्पून फीड यू। आपको चम्मच खिला के बच्चे की तरह पिला नहीं सकता। तो जो आपका खुद का एफर्ट है वो आपको खुद से प्लान करना है। इवन इफ यू टेक अ प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, फ्रॉम अ फॉर्मल इंस्टीट्यूट, यू हैव टू प्लान योर ओन टाइम टेबल। प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है, शेड्यूल करना है। अभी आई एम जस्ट वेरी नीड टू कट अ सॉरी फिगर, देयर अराउंड 168 स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप एंड अराउंड 32 to 33 आर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज क्लास। सो दैट इज़ अ सैड थिंग टू फील, बट सी दिस स्टिल डिसहार्टन्स मी। मुझे इससे कोई डिसहार्टनिंग नहीं है। Only and only when people are there to watch, they have their own schedules, I can understand. Sometimes time does not match, sometimes there are so many commitments, I can still understand. But do prepare, plan and practice. This 3P structure is definitely going to help you crack your IELTS exam in one shot. That is very important thing. Tip number 10, time management is very crucial. Time management, as I have told you, many of the IELTS test takers lack on this part. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो चैलेंज बन जाता है कि सब कुछ हो गया, आपने क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन बुकलेट में लिख दिए, आपको आंसर्स आ भी गए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसको छोड़ दो एक बार, बिकॉज दैट विल टेक मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड यू विल किल योर एक्स्ट्रा टाइम। डिफिकल्ट को छोड़ो, हो सकता है ईजी वंस बाद में रह जाएं, आपको वो आते हैं और बाद में रह जाएं, इतना टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो जाए। तो सबसे पहले ईजी वाले, जो एक डिफिकल्ट आता है, आपको पता है इसका आंसर नहीं पता, लीव इट, move to the next, moving to the next, moving to the next. Leave those difficult questions for the end. उनको करना है, बाद में करना है, लेकिन पहले एटलीस्ट जिनका आंसर आप इजीली कर पाते हो उनके ऊपर जाओ। तो वो उस तरह से आप पूरे टाइम को मैनेजमेंट करें। और ट्रांसफ़र ऑफ टाइम, इसमें आंसर शीट में ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपको लिसनिंग में 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे, यहाँ वो नहीं मिलेंगे। जस्ट बी श्योर ऑफ दिस थिंग, यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपने क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन को फिल किया, आंसर वहाँ पे लिखा, साथ में पैरेलल आपने आंसर शीट बुकलेट में ट्रांसफ़र करना है। सो यू डोंट हैव टू वेट कि आई विल गेट एक्स्ट्रा टाइम एज आई गॉट इन लिसनिंग, बिकॉज इट इज़ ऑन द सेम डे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लिसनिंग का टेस्ट दे के हटे होते हो एंड यू हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड आउट ऑफ दैट। तो रीडिंग का टेस्ट उसी दिन होता है, सेम डे विद अ सर्टेन गैप। सो बाय द टाइम यू गिव योर लिसनिंग यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। और टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल कंपोनेंट हो जाता है उस स्टेज में कि बैलेंस्ड और काम अप्रोच से आप उस टाइम को अच्छे से मैनेज करो। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पैसेज के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढो, फिर उसका आंसर बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट में लिखिए, फिर उसको करेक्ट स्पेलिंग करके जो भी दिक्कत है उसको आंसर शीट में ट्रांसफ़र कीजिए। तो दिस इज़ हाउ द होल टाइम हैज़ टू बी मैनेज्ड with 4 passages or 5 passages which you get in academic as well as journaling. 3 passages in academic and 5 passages in journal training. Tip number 11, study the task. This I have already, पहले task को पढ़ना ज़रूरी है and then read the passage.
अगर पैसेज को पढ़ के टास्क को स्टडी करोगे फिर पैसेज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, विच विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम. सो डोंट डू दैट. डोंट स्टार्ट रीडिंग द पैसेज फर्स्ट विदाउट स्टडिंग द टास्क. टास्क को पढ़ने के बाद ही आप पैसेज को रीड करना शुरू कीजिए, ताकि आप उस स्पेसिफिक गोल के साथ उस पैसेज को पढ़ रहे हैं, दैट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. सब द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, उसका आंसर ढूंढिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर उसका आंसर ढूंढिए, फिर थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर उसका आंसर ढूंढिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इन सीक्वेंस ओनली. इवन इफ दे आर नॉट, यू विल स्टिल फाइंड योर आंसर. बट अगर आप सारे क्वेश्चंस एक साथ पढ़ के फिर आंसर ढूंढोगे, देन यू आर अगेन गोइंग टू क्रिएट अ मेस. So just follow this step-by-step approach, and one question at a time, and then one answer at a time. Second question at a time, second answer at a time. This will help you to save your time, and you will be able to attempt them very easily. Tip number 12, improve your reading speed. Reading speed will improve with lot of practice. अगर आपने बहुत सारे practice passages है, I would recommend Cambridge official guide for this, wherein 1 to 14 tests are already there in structure. You can practice those official tests, and you will definitely get the correct and appropriate layout of those reading which have been taken place in the past. So just that will help you improving your reading speed. Keep the order and sequence in mind. As I told you that questions are in sequence. The questions are in correct sequence, like first question comes first and second question's answer comes second in the passage. But that may not always happen, but आपको order और sequence ध्यान में रखना है. Most of the times the question sequence and the answer sequence in the passage will be same. So you have to just take the benefit and advantage of that thing and keep answering these questions. Tip number 14, unfamiliar words you will definitely come across. Certain words जिनका मीनिंग आपको नहीं आता, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे. I'll show you some passages in in my session also. बहुत सारे अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे. डोंट पैनिक ओवर दैट कि मुझे इनके मीनिंग नहीं आते. The ultimate thing is not to. Nobody, even the native speakers, cannot know all the vocabulary, right? Don't panic. Just try to understand the whole spirit of the passage. कि उस पैसेज के अंदर क्या है. जब तक आपको उस पैसेज का ओवरव्यू समझ में आ रहा है, you are able to find keywords, you will not panic in answering those questions. Yes, Angel Garg, what is your question? You're asking a question about perfect continuous. We'll definitely answer that after the session, dear, because I would prefer to answer those questions which are related to today's session. Perfect continuous. You can watch our videos on tenses also, which are there. A complete course on tenses is there in the video library. You will clear your doubts, and you can also WhatsApp me for your doubt if there is any. So unfamiliar words related to any vocabulary words are there. So don't panic, move ahead and then answer those questions smartly. Any difficult questions, move ahead, attempt the easy ones first, then go to the difficult ones if you are left with the extra time. Use that time to your advantage. Tip number 15, pay attention to the details. Of course, whenever you are skimming or scanning the passage, whenever details come, specific keywords, pay attention, stop there, underline that. And then probably after that, when you all have all the keywords underlined and highlighted in the passage, your answers will be very easy to find out. So this is how. Pay attention means stop there, your answer is there. Underline and then answer that question according to whatever is given in the task. Tip number 16. See, there is no negative marking. Of course, if there are 40 questions in total passages, 3 passages or 5 passages in different tests, both the test academic and journal, you don't have to leave any boxes blank. कोई भी box blank नहीं छोड़ना, because गलत आंसर के आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिलेंगे. जो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पैसेज में से लगता है वो लिख दीजिए. दैट विल ऑलवेज हेल्प यू. इवन इफ 1 or 2 आर करेक्ट, that will help you score good band. So don't leave any boxes blank, fill everything, Next, coming to academic reading test. Now let's understand what does come in academic reading test. We've already discussed in the previous session. Duration is 60 minutes. Total number of passages are 3 in number. Each passage has 13 to 14 questions. Total number of questions will be 40.
मतलब पूरे तीनों पैसेजेस के मिला के जो क्वेश्चन आपके होते हैं 40 होते हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. No extra time will be given to transfer the answer on the answer sheet. That means you have to do within those 60 minutes everything. Question booklet, reading passage, question answer and answer sheet transfer. These passages are generally, अब जो academic reading text के जो passages हैं वो long होते हैं. Passages बहुत long होते हैं. Reading passages कहाँ से लिए जाते हैं? Authentic books, journals, magazines and newspapers. So that means those are real life stories. Those are not just like anything abstract. Normally academic topics होते हैं. You like academic है तो academic topics are chosen. Science से related हो सकता है. It can be related to geography. It can be related to social science. So most of the time they are real authentic materials which are taken from academic texts. So this is the structure and layout of academic reading text. Now there are wide range of subjects, as you know. You have studied various subjects in your school, college. Science, history, environment, diversified vocabulary. सबसे important चीज़ है इसमें vocabulary की जो range है बहुत diversified होती है. You cannot have simple vocabulary. You cannot expect simple vocabulary. इसीलिए जो academic reading test की और general training test की जो weightage है, band structure है, उसमें वेरिएशन क्या मिलता है कि मान लीजिए एकेडमिक रीडिंग टेस्ट में आपने 30 मार्क्स लिए तो आपको 7.5 तक बैंड मिल जाता है. लेकिन अगर आपने जर्नल ट्रेनिंग टेस्ट के रीडिंग में आपने 30 मार्क्स लिए तो आपको बैंड 6.5 मिलेगा. अब आप पूछोगे कि एकेडमिक में 7.5 क्यों? वाई? बिकॉज वो पैसेजेस डिफ़िकल्ट होते हैं अटैम्प्ट करने, इसीलिए उनको हायर रेट के अकॉर्डिंग ही उनको हायर स्कोर भी उनको दिया जाता है उसी पर्टिकुलर पॉइंट से. नेक्स्ट कमिंग टू जर्नल ट्रेनिंग रीडिंग टेस्ट. ड्यूरेशन इज सेम 60 minutes. Total number of passages are 5 in number and 3 reading sections में वो spread होते हैं. 3 reading section means first reading section will contain 3 to 4 short factual passages and then second section will have 2 passages. Second reading passage is 1 passage and then fourth will have long text. So this is how total 5 passages will be there. Then each passage is again 12 to 14 questions. Total number of will be 40 only. Each question carries 1 mark. Again, no extra time will be given to transfer the answers on the answer sheet. And these passages are generally taken from notices, advertisements of the company, handbooks, magazines, newspapers. And these are journal related to job because journal training का purpose job है. तो उसी तरह के advertisement से जो है material लिया जाता है. उसका purpose academic है, higher studies है. तो वहाँ ज़्यादा स्टडीज़ और एकेडमिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स लिए जाते हैं. सो दिस इज़ द वेरिएशन यू गेट इन बोथ द टेस्ट्स. सो जर्नल ट्रेनिंग रीडिंग टेस्ट सेक्शन 1 में क्या होता है? आपको 2 या 3 शॉर्ट फैक्चुअल टेक्स्ट मिलेंगे. फैक्चुअल टेक्स्ट मीन्स बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, वन ऑफ विच मे बी कंपोजिट. दैट मीन्स एक पैसेज में क्या होगा, 6 से 8 छोटे छोटे टेक्स्ट होंगे. सेक्शन 1 मतलब पहला पैसेज जैसे ए बी सी डी में ऐसे शॉर्ट टेक्स्ट में भी 5 to 6 लाइन का एक टेक्स्ट होगा. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सेक्शन 1 की पूरी लेआउट है. एंड टॉपिक्स क्या होंगे? होटल की एडवर्टीजमेंट हो गई. टॉपिक्स आर रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ. इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एवरीडे लाइफ क्या होती है? एवरीडे लाइफ कैन बी सोशल लाइफ, party culture, annual day function. It can be an advertisement, hotel accommodation facilities. So all these will have in section 1. Section 2 में क्या होता है बेटा? Contains 2 short factual texts focusing on work related issues. 2 short factual texts का मतलब है it can be related to work related issues. कंपनी की कोई पॉलिसीज़ हैं, पे कंडीशंस हैं, वर्क प्लेस फैसिलिटीज़ क्या हैं, स्टाफ की डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए कंपनी क्या कर रही है, जॉब्स के लिए एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने क्या क्या रूल्स बनाए हैं. तो 2 फैक्चुअल टेस्ट शॉर्ट होंगे फोकसिंग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज़. तो ये भी शॉर्ट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक जहाँ पे लॉन्ग पैसेजेस हैं. यहाँ पे जो पैसेजेस होते हैं वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में शॉर्ट रहते हैं. और सेक्शन 3 कंटेन्स 1 लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट ऑन अ टॉपिक ऑफ जर्नल इंटरेस्ट. किसी भी जर्नल इंटरेस्ट के टॉपिक को लाइक दे कैन पिक अप अ टॉपिक ऑफ you can say a food industry. They can pick up a topic of a recipe. They can take a topic of herbs and medicinal use of that herb. So any journal interest topic can be chosen and 1 longer text is there which is little more complex
एज कम्पेयर टू सेक्शन 1 एंड 2. थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रिकेट होता है. कॉम्प्लेक्स मीन्स इंट्रिकेट, इट इज़ द सेम वर्ड फॉर दैट. थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सेक्शन 1 एंड 2. सो दिस इज द लेआउट फॉर जर्नल ट्रेनिंग रीडिंग टेक्स्ट. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं. We'll continue tomorrow for the types of questions. There are many types of questions in reading test. Like we have a true false question, yes no not given questions, and the other type of questions can be matching headings questions. Then various other types of questions can include multiple choice questions, short answer type questions, sentence completion questions, and many more are there in the line. एंड टुमारो सेशन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. जब जिस तरह से आपको एक एक पैसेजेस के अगेंस्ट आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए जाएंगे एंड हाउ डू यू टू स्मार्टली आंसर दोज क्वेश्चंस while attempting a reading test of IELTS. So do not miss tomorrow's session and stay tuned with us for more such sessions in future. Tomorrow will be day 4, reading test 4, wherein we will be discussing wide range of types of questions which you get in academic as well as journal training reading test. So that's all for today. Thank you for your wonderful participation, your doubts, and your staying patient with us for so long. So good night, goodbye.